Hello guys, welcome to my channel. Today I'm just going to share my experience of the 11 days quarantine and my room tour too. So let it begin. So this accommodation I have booked for myself for the next 11 days. Actually, they have provided me two beds. In one side, my friend is going to stay with me, and the another bed is for me. It's a normal room. So this is the place where I am going to complete my rest of the 11 days quarantine. Okay, so when you are just booking for the 3 days quarantine hotel, you also have to book 11 days quarantine hotel at the same time, क्योंकि we have to show that receipt at the immigration office too, that where you are going to complete your 11 days. So जब आप यहाँ पे कनाडा में आते हो, the immigration officer also look at the 11 days quarantine, जब मतलब जहाँ पे आप अपने 11 दिन निकालने वाले हो. Are they providing you any meal and all the specific. They even ask you this question that मोटेल या फिर Airbnb या फिर जहाँ पे भी आप अपने 11 days कंप्लीट कर रहे हो वो आपको मील प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. एंड the main thing is that while you are booking the accommodation for the 11 days for the quarantine purpose, make sure that it should be safe. Like अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे जा रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के यहाँ, तो you should have a separate room which is having a separate bathroom and even kitchen too. And whereas Airbnb, they are already providing a kitchen, a washroom and a room separately. Whereas जब आप मोटेल में बुक कर रहे हो तो you don't have to look about all of these things. आपको just यही देखना रहता है that are they providing you meal or not. So जब मैं मेरी फर्स्ट होटल I mean 3 days क्वारंटीन होटल में से कंप्लीट होके बाहर आ रहा था for the 11 days, तो you can choose like taxi or like any means of transportation, but mostly they are preferring that आप taxi ही prefer करो. Even some of the colleges are providing complimentary transportation services, so you can look and contact college about this thing that are they providing you or not. So when I just arrived at my second quarantine place for the 11 days, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब मुझे बताया गया that मुझे जो रूम मिलने वाला था, जो स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी था, he was कोविड पॉजिटिव. सो आई वॉज लाइक कि चलो भाई, अगर वो मुझे वही रूम देने वाला है देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ उस स्टूडेंट को लेके रिस्क में नहीं डाल सकता. सो ऑब्वियसली कोई भी नहीं जाना चाहेगा वो रूम में जहाँ पे जो स्टूडेंट रहा था वो ऑलरेडी पॉजिटिव है और स्टिल वो अपने रूम में ही था. एंड ही वॉज लाइक यू कैन शेयर विथ हिम. सो आई टोल्ड दैट नो, आई डोंट वांट टू शेयर एनी रूम विथ एनीवन, मुझे सेपरेट रूम ही चाहिए. एंड द केयर टेकर ऑफ दैट होटल टोल्ड मी दैट सॉरी, the hotel is totally packed, we can't provide you any room. So I was like, is there any other alternative at this point? So he told me that you can look for the another hotels which are nearby in area. So I was like, okay, can you just provide me the Wi-Fi passport, क्योंकि हमारे पास यहाँ का सिम कार्ड तब तक होता नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंटली 14 days क्वारंटीन में ही रहना होता है, अनलेस एंड अनटिल आप अगर एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड ले लेते हो तो. सो जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो ये सब हो चुका था, तो मैंने उनसे वाईफाई पासपोर्ट लिया यहाँ का. फिर आई जस्ट टेक्स्ट इन द गूगल दैट नियर बाई मोटल्स कौन सी है एंड व्हाट आर दे मतलब आर दे प्रोवाइडिंग एनी मील्स, उनके रेट कितने हैं. ओके, सो दिस मोटेल वेयर आई एम करेंटली स्टेइंग, इट्स 15 minutes डिस्टेंस फ्रॉम माई प्रीवियस मोटेल वेयर आई वॉज गोइंग टू स्टे. तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने बोला दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी मील. सो आई वॉज लाइक ओके, अगर मील प्रोवाइड नहीं कर रहे हो देन इट्स फाइन, let me just complete my 11 days quarantine. So the manager told that yeah, it's absolutely fine, you can complete your 11 days quarantine over here. And the main thing अब वो आती है that meals, that आप meal का कैसे करोगे. So you can book the tiffin service for 11 days. For me it costed me $100 for 11 days and मुझे 11 days quarantine stay का it was $505.
सो ओवरऑल मुझे $605 में मुझे 11 डेज कंप्लीट मतलब हुए. एंड द रेस्ट थिंग वॉज दैट अगर आपके साथ भी इवन एट द एंड मोमेंट ऐसा कुछ होता है, सो डोंट पैनिक, लाइक काम रहो वो सिचुएशन में एंड थिंक दैट व्हाट यू कैन डू इन दैट टाइम. चलो लाइक अब हो चुका है वो तो हो चुका है, यू कांट चेंज दैट. सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू एट दैट टाइम. सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस मत ले लेना ये चीज को लेकर कि अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, क्या होगा. सो टेक इट इन अ काम वे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेटल आउट. एंड अगर आप 11 डेज क्वारंटीन होटल में कर रहे हो, मोटेल में कर रहे हो, एयरबीएनबी या फिर अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव के यहाँ पे, सो मेक श्योर दैट दे आर प्रोवाइडिंग यू हाइजीन प्लेस, लाइक जो सैनिटाइज की गई हो. एंड वाइल अगर आपके साथ भी अगर सेम चीज हो रही है दैट यू हैव टू चेंज द एड्रेस, लाइक अपनी फर्स्ट क्वारंटीन प्लेस से दूसरी क्वारंटीन प्लेस आपने चेंज की है, तो मेक श्योर आप अराइव कैन में उन्हें अपडेट दे दो. यू हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल एंड यू हैव टू राइट देम अ लेटर वेयर दे आस्क दैट आप क्यों चेंज कर रहे हो ये 11 डेज क्वारंटीन प्लेस. सो आप उन्हें जस्टिफिकेशन दे सकते हो चीज के बारे में दैट द प्लेस वर ऑलरेडी हैविंग कोविड पेशेंट्स, वेरस कि मेरे केस में वो मोटेल में ऑलरेडी 5 to 6 कोविड पेशेंट्स थे, तो मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था. सो मैंने जस्ट जब अराइव कैन में वो लेटर डाला, सो वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ गया था दैट मेरी जो फर्स्ट क्वारंटीन प्लेस थी वहाँ पे ऑलरेडी 5 to 6 स्टूडेंट्स को कोविड पॉजिटिव आ चुका था और मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो मेरी हेल्थ पे भी असर करे. सो आई जस्ट वेंट फॉर द अनदर ऑप्शन. एंड जब ये लेटर खत्म होता है यू हैव टू मेंशन योर न्यू एड्रेस इन दैट. एंड इवन जब ये सब चीज़ होती है द ऑफिसर्स ऑल्सो कॉन्टेक्ट यू, क्योंकि मुझे ऑफिसर का कॉल आया था ऑन माई इंडियन नंबर वेयर दे जस्ट आस्क मी दैट वेयर आई एम राइट नाउ, मेरी हेल्थ कैसी है. एंड मुझे सब इन्फॉर्मेशन मेरी डिटेल्स पूछी गई, हाउ आई एम. फिर मैंने ये क्वारंटीन की प्लेस क्यों चेंज की. इफ ऑफिसर्स आएंगे देन दे आर गोइंग टू चेक योर हेल्थ एंड लाइक आपका अराइव कैन देखेंगे ऑल वो सब बातें. सो आई वाज लाइक ओके या यू कैन कम एंड चेक, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ मेरी 11 डेज. और इवन इफ ऑफिसर आते हैं देन इट वॉजंट दैट मच बिग इशू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो दैट अब न्यू रूल्स के मुताबिक आप शेयरिंग में रह सकते हो कि नहीं, क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड वी केम फ्रॉम द डिफरेंट फ्लाइट्स एंड येट मुझे होटल के मैनेजर ने बताया दैट इवन यू हैव केम फ्रॉम द डिफरेंट फ्लाइट्स, यू आर हैविंग अ नेगेटिव रिपोर्ट जो आप कनाडा के एयरपोर्ट में आके निकालते हो. तो अगर आपके पास वो नेगेटिव रिपोर्ट है देन यू कैन शेयर क्वारंटीन विथ योर फ्रेंड्स. सो वाइल यू आर कमिंग इन कनाडा एंड सो मेक श्योर दैट आप 11 डेज क्वारंटीन वाली जो जगह है वहाँ के मैनेजर या फिर कोई भी केयर टेकर हो उससे ये चीज़ क्लियर कर लो दैट कैन वी और कैन वी नॉट. सो माइट भी आपके लिए वो इजी रहेगा एंड इट वुड बी कि आपको उतने पैसे खर्च ना करने पड़े. इट वुड बी गुड फॉर यू. सो टेक अ लुक आफ्टर दिट एंड सो दैट्स इट. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.